Hello and welcome to another episode of Mixtape. Today we have with us Shama Numan. She's a passionate educator, mother, and occasionally a flippant storyteller. She loves children and shares her classroom experiences via her educational initiatives titled The Why Teacher. Shama is presently working with the Emirates Literature Foundation and runs a children's storytelling writing competition. Welcome to the podcast. Thank you, Fatma. Thank you. It's a pleasure to be here. Uh, and finally, I have you on my podcast, and I have been planning this for some time now. Yes. And we have been interacting on various other forms and platforms, and we, talk about storytelling and talk about writing. So just start हम इस तरह करते हैं कि आप बताएं कि this term storytelling आजकल I think बहुत सारे लोग use भी इस term को use कर रहे हैं. I don't know if it's a COVID thing or whatever. But what does storytelling mean to you? What उसकी importance आपके लिए personally क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी खुशी का इजहार कर दूं क्योंकि मुझे वीडियोस बनाते हुए बहुत अरसा हो गया और हमेशा अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद ही कराती हूँ. तो ये पहली दफा है कि किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है. तो thank you. It's really a pleasure to be a part of your podcast and I wish you luck with it. It's always interesting to see कि हमारे पाकिस्तान से बहुत creativity निकलती है in the form of promoting, storytelling, literature, and I know you're a book nerd yourself, so this is an important, topic for you. Storytelling to me, I would say, Fatima, is truly like connecting with people. तो इसमें चाहे आपके सामने एक फिजिकल ऑडियंस मौजूद है या नहीं है, आई फील के स्टोरीज आर ऑलवेज टोल्ड टू समवन. अब चाहे वो आप लिख के एक्सप्रेस करें या आप वर्बली एक्सप्रेस करें, और इट कम्स थ्रू योर आर्ट और एनी अदर फॉर्म और मीडियम, स्टोरीज आर ऑलवेज क्रिएटेड फॉर एन ऑडियंस. सो ये सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग मेरी स्टोरी टेलिंग को लेके है. दूसरा ये है कि एट अ वेरी यंग एज I realized the power of stories because मुझे कभी अगर घर से बाहर जाके खाना होता था तो I would approach my parents and create or cook up a story इस तरीके से कि I would persuade them to take us all out. तो मुझे बहुत छोटी एज पे समझ आ गया था कि कहानियां जो है ना उनके अंदर they have the persuasive power to get things done. तो I think कि ये एक skill है which can also be taught in schools and through education, or storytelling is a huge part of education. So I believe storytelling is a really important tool, that can teach children about how to become, responsible and eloquent speakers. हमारे पास जो बच्चे हैं उनके पास इतना कुछ है कहने को. अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं और कोई कहानी शुरू करते हैं तो हम छोटी उम्र में तो ऑब्वियसली स्टोरीज डोंट मेक एनी सेंस, तो हमारा जनरल रिस्पॉन्स होता है कि बस करो क्या नॉनसेंस है, like it seems nonsense. But I've seen for a fact that parents who encourage these stories, even if they don't make sense, these nonsensical stories eventually become very sensible, क्योंकि वो बच्चा अपने एवोल्यूशन प्रोसेस से सीखता है कि ये नॉनसेंस क्यों है और आहिस्ता आहिस्ता उसके एक्सपीरियंसेस उस कहानी को बेहतर कर देते हैं. So I think parents also have like a huge role to play there to encourage their children to speak. That's very good point जो आपने उठाया. Specifically, I think if we talk about our own society and general culture, there's a lack of this communication, I think, with बच्चों का, because I don't know if it's I think I'm not an expert to say that this is something exclusive to our culture, but kids are usually dismissed. Their thought process or their questioning, and specifically एक चीज तो हम assured हम कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन तक तो ये मैंडेटरी था ना कि डोंट क्वेश्चन, कोई सवाल पूछे. एग्जैक्टली हमारे यहाँ ओबीडियंस जो है उसको रिस्पेक्ट समझा जाता था to quite a long time, for quite some time. और अब जो है thankfully parents have slowly begun to understand कि obedience जो है वो फिर आपको अगर अपने मुल्क में लीडर्स पैदा करने हैं तो बच्चों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी जो है वो होगी तो वो लीडर्स बनेंगे, अदरवाइज दे जस्ट बी फॉलोअर्स. वो अगर हाँ में हाँ मिलाते ही रहेंगे तो और अपनी उनकी कोई शनाख्त या पहचान नहीं बनेगी तो फिर बच्चे किस तरीके से अपने आप को आप उनको डिस्टिंग्विश करेंगे.
तो हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली ये चीज है कि एक तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा जो सिस्टम है, हमने जिस तरीके से हम अपने रिश्ते लेके चलते हैं, अगर नानियां दादियां हैं तो हाँ, यू कैन से कि योर एक्सटेंडेड फैमिली एक्चुअली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिसनिंग टू द चाइल्ड, क्योंकि जब माँ बाप जो हैं वो डिसमिस करते हैं तो बच्चे अपनी नानी के पास जाके बात करते हैं या दादी के पास, तो दैट इज स्टिल अ बिग होप देयर फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मगर ये है कि हम जनरली इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने बच्चों की बात को, बिकॉज वी डोंट सी देम एज होल इंडिविजुअल्स। हम बहुत वेट करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल बड़े ना हो जाएं, और जब तक ये डायलॉग किसी के मुंह से निकले ना कि हुन बस कर दो, ओदी भी कोई इज्जत हैगी है तब तक हम बच्चे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, जब तक कि हमें ये महसूस ना कोई कराए कि इतना बड़ा हो गया है तो आप अभी भी इसी तरह बात कर रहे हैं उससे, तो तब हमें जाके पता चलता है कि बच्चा बड़ा हो गया तो अब उसकी इज्जत करनी जरूरी है। there's a whole I think वो कुछ दिनों पहले I was एक ट्विटर ट्रेंड भी था, किसी ने पूरा वो थ्रेड लिखा हुआ था sharing their own personal experience about how this everything has an impact on the mental health as well, but obviously that we'll have it. That's another complete different podcast. So just redirecting to your profession basically, which is you're a teacher. As an educator, how do you use storytelling, or how do you see aapka experience, whatever you want to call it, of the importance इस role की storytelling की, oral हो, visual हो, whatever medium, into the development of a child? You can touch upon the fact कि उसके various stages पे, is it just needed for primary school kids, या बड़े होते हैं तब भी जरूरत होती है, different होते हैं. And a specific thing that I want to ask here is कि मतलब not just saying कि not only for those जिनका थोड़ा सा creative writing की तरफ interest है या कुछ, but in general, how do you think storytelling can help them do good in other academic subjects as well? So you've asked a lot of things actually now. तो हम एक एक करके इसको एड्रेस करते हैं. सबसे पहली जो खूबसूरत चीज स्टोरी टेलिंग की है कि इट ह्यूमनाइजेस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ठीक है, स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. तो बच्चे अगर टीचर को देख भी रहे होते हैं ना, उस सेंस में कि उससे डर लगता है या वो बड़ी अथॉरिटेटिव कोई फिगर है, स्टोरी टेलिंग एक प्रोसेस ही ऐसा है कि इट्स वेरी इंटीमेट. तो बच्चे जो हैं वो एक सर्कल में बैठे हैं, आप उन्हें एक कहानी सुना रहे हैं, तो इट ह्यूमनाइजेस द होल द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग. उसके बाद ऑफ कोर्स कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इट हैपन्स विद स्पीकिंग. आप दुनिया जहान की ग्रामर पढ़ा लें, आप बच्चे को रीडिंग सिखा दें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक बच्चा वो जबान नहीं इस्तेमाल करता, उसके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं आती. और फ्लुएंसी लाने के लिए यू हैव टू एंगेज विद द लैंग्वेज फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली. और स्टोरी टेलिंग जो है वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है. उसके अंदर ज्यादा बच्चा एट ईज होता है, ज्यादा रिलैक्स्ड होता है, तो उसको अल्फाज इस्तेमाल करने भी आसान लगते हैं उसको. दूसरी बात यह है कि आप कोई भी जबान सीख रहे होते हैं तो उसके कुछ कल्चरल रेफरेंसेस भी होते हैं. तो जब आप टीचर कोई कहानी सुना रही है, तो अगर उसके कोई स्लैंग वर्ड्स हैं, अगर उसमें ट्रेडिशंस आते हैं, अगर उसमें कल्चर के बारे में कोई बात होती है, तो इनडायरेक्टली आप स्टोरी के थ्रू कल्चरल अवेयरनेस भी बच्चों को दे रहे होते हैं, जो कि आजकल की दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है. ऑफ कोर्स टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस एंड डाइवर्सिटी, ये सब बातें हैं जो हम किताबी तौर पे तो करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को बिठाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो दीज आर थिंग्स दैट कैन एक्चुअली कम ब्यूटिफुली थ्रू अ स्टोरी. तो स्टोरी टेलिंग उस एलिमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी ये है कि आपने पॉडकास्ट का जिक्र किया था, तो मैंने खास तौर पे जाके थोड़ी सी रिसर्च भी की कि मैं ढूंढूं क्या कौन सी पॉपुलर जो हैं वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर रिसर्च हुई भी है. तो it was surprising to find कि mostly research जो है it is about reading as a tool to develop literacy. So I believe that storytelling is an important pedagogical tool that is engaged through language development. और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा research नहीं है, लेकिन there's one interesting one which I found, Dr. Rebecca Isbell, and it was published in 2004. और उनका जो focus था research का वो ये था कि reading और storytelling जो हैं उनका क्या impact है बच्चों की language development पे
plus their reading comprehension. और ये experiment जो था ये इन्होंने 3 to 5 year old बच्चों के साथ किया था. So they divided the children into 2 groups, or they delivered around 24 stories to them over a period of time. और साथ साथ वो of course उनकी comprehension को और उनकी language complexity को measure करते रहे on a side, and they specified the 2 groups in a way that, you know, एक group जो था वो कहानी जो थी वो storyteller के through सुनते थे, तो उसमें कोई किताब involved नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक storyteller कहानी सुनाता था. और जो दूसरा group था उसको वही कहानी जो है वो रीड करके बुक से सुनाई जाती थी. तो दे वांटेड टू सी कि इसमें कोई सिमिलैरिटीज हैं या बच्चों के एक्सपीरियंसेस में क्या डिफरेंस आता है. तो उनकी फाइंडिंग्स खासी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज व्हाट दे फाउंड आउट वाज दैट द ग्रुप हु वाज लिसनिंग टू द स्टोरीज via the storyteller who was recreating the experience for them, they tended to remember the comprehension, they tended to remember the details of the story much better, and unka comprehension zyada behtar tha, as compared to the children who had the book as a reference and the book text as a reference, and they actually were really good at developing the language. So language complexity ki jab baat aati thi, to reading from a book really helped, and the same story that was delivered through a storyteller, the comprehension aspect of it was very strong. So even though both aspects, you know, helped in developing the language and comprehension, ye do distinct features unhone, you know, they found out that these are 2 very distinct outcomes of the experiment. So isse I think jo cheezein mujhe samajh mein aayi wo ye thi ki jab aap story टेलिंग का प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी डिलीवरी डिफरेंट होती है. जब आप किताब से किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज द टेक्स्ट दैट्स इन द बुक. आप कभी भी टीचर को देख लें, वो अगर कहानी सुना रही है किताब से तो वो उसी टेक्स्ट से रिलेटेड सवाल करेगी, उसी टेक्स्ट को डिस्कस करेगी. अगर उसमें इलस्ट्रेशंस हैं तो वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं बच्चों का, यू नो. तो बुक इज अ विजुअल फॉर देम, इट्स ऑलरेडी गिवन देम अ विजुअल. जबकि स्टोरी टेलिंग जो है वो इट्स द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड. आप जो डिलीवर कर रहा है स्टोरी टेलर जो है, ही यूजेस और एंगेजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, उसके अंदर बहुत डिस्टिंक्ट स्पेशल, यू नो, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज यूज करेगा वो. उसमें उसके जेस्चर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत यू नो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइसेस इन्वॉल्व देयर. सो चिल्ड्रन, एंड it's a far more interactive session, you know. It's kind of creating the story together with the children. So every step of the way you're stopping to ask a question or the child is asking a question. There's a lot of interaction happening in storytelling. So जब आपकी कोई memory जो है वो किसी episode के साथ जो है attach हो जाती है तो it becomes very personal and special, और उसकी वजह से आपको चीजें याद रहती हैं. So the memory is really good with storytelling. और I found this to be very interesting in reference to जो बच्चे किताब देख के पढ़ रहे हैं उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, बिकॉज जो डिस्कशन है इट्स solely around the text का, इसके अंदर आप कह लें फोनोलॉजी आ गई आपकी, यू नो, सिंटैक्स, दिस दैट, everything related to language is being developed there. So that was interesting to, you know, see के अब कितना contribution है, you know, storytelling का towards children being engaged. एक high level of engagement की हम बात करें जब हम storytelling की बात करते हैं. तो I think कि schools के अंदर हमने इसको बहुत limit कर दिया हुआ है to our kindergarten and to our primary. Yes, it's very, it plays a huge role in developing the child's vocabulary at that age, क्योंकि उस वक्त बच्चे बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होते हैं. You know, their minds are so it's like starting from scratch. They have so much to absorb. So vocabulary building at that time is wonderful. Pick करते हैं, वो बहुत जल्दी सीखते हैं. लेकिन हमें ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि अब तीसरी जमात तक पहुंच गए तो अब हमें जरूरत नहीं रही. अब हम फोकस करते हैं कि अब किताब अपनी चूज करो और पढ़ो. ये मैं आपको फैक्चुअली बता सकती हूँ कि मैंने मिडिल स्कूल को पढ़ाया है. तो मिडिल स्कूल में जो बच्चों की जरूरतें होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं. It's a time of turmoil for them, you know. उनके वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चे थोड़े से इमोशनली बहुत ऑफ बैलेंस होते हैं. They need somebody to inspire them. They need somebody to give them a story of hope, a story of possibilities. They want a storyteller who can, you know, who can understand them and tell them the stories they want to hear. They don't want to hear stories which everybody is telling them, you know, कि
पढ़ो, ये करो, इस तरह करो, ये नहीं ठीक, वो गलत है. चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, उनकी अपनी आइडेंटिटी बन रही होती है. एंड देयर आर, हमारे कल्चर में स्पेशली देयर आर टू मेनी डिटरेंट्स. एवरीबडी इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो उस पॉइंट पे अगर उनके स्कूल में ऐसा कोई टीचर है जो उन्हें कहानियां सुनाता है, उन्हें कहानियां ऐसी सुनाता है कि वो इंस्पायर करते हैं, बल्कि इन अ वे इट कैन बी सो हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द चाइल्ड. आप अगर एक अच्छे टीचर हैं, आप उन्हें कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे उन बच्चे समझते हैं कि मसला जो है वो कुछ हद तक उनकी तरफ से भी है, एंड इट हैज टू बी मेट विद अ कॉम्प्रोमाइज एंड थिंग्स हैव टू वर्क आउट. ये एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है अ स्टोरी टेलर इन अ स्कूल कैन स्ट्राइक. इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है, दे कॉल मोटिवेशनल स्पीकर्स टू स्कूल. बच्चे डिफरेंट होते हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल डू दैट, इज बिकॉज बच्चों को हर वक्त एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है. ऐसी कहानी जो उनको उम्मीद दे, जो उनके लिए रास्ते आसान बनाए और उनको समझने का मौका दे. बिकॉज स्टोरीज आर ऑल अबाउट लाइफ. They are teaching you about about things about yourself. They're teaching you things about others, about conflict, how to resolve conflict. The characters in a story can teach you so much. I've seen children read story characters and be so inspired that they want to be like them. You ask a child who's your hero, it will always be a character from a story. So this is the power of stories, which we lose somewhere down the line because we feel कि कहानी है तो फिर बच्चा साथ हो. हमारे जहन में एक बच्चा आता है, कहानी है तो फिर एक छोटा बच्चा होता है. बट कहानियां जो हैं वो, टू बी ऑनेस्ट, लाइक लुक एट अस, आई एम अ ग्रोन अप वुमन. I work with an institution. The institution has a mission and a vision stated. Now that's their mission and vision. Until and unless they create a beautiful story around it, I'm not engaged with that story. मैं उनके विजन से मुझे क्या लगे, I'm going to work for my selfish reasons, for my own personal reasons. तो जब मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन एक खूबसूरत सी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी अटैच करता है अपने गोल्स के साथ, तो देन इट बिकम्स अ कलेक्टिव टीम काइंड ऑफ एफर्ट टू अचीव व्हाट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू अचीव. सो हर चीज में स्टोरीज इन्वॉल्व हैं. हमारी रोजमर्रा की बातों में स्टोरीज इन्वॉल्व हैं. आप काम से वापस आते हैं तो आप बैठ के बताते हैं आज क्या हुआ काम पे. दैट इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ. But when you add a purpose to your story, then it becomes inspirational, then it becomes a point of new learning. I think बहुत दफे ऐसे होता है कि हमारे पास बहुत मौके ऐसे आते हैं कि कोई इवेंट हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, हम उसको प्लेनली उसको नरेट कर देते हैं without putting a purpose to it. बच्चों के साथ, if you're raising kids, so many things happen when children are growing up. वो इतनी गलतियां करते हैं बच्चे, मगर हम डांट के उस चीज को खत्म कर देते हैं. अगर हम अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करें उनके साथ, and we tell them how we went through something like that and how we learned a lesson through that, not in a way that we are preaching them, but still giving them a point of reference, which is through a story, we will see that it makes such a huge difference on children. They tend to listen more, they tend to believe more. Like I said, they humanize you more. कि आप भी इंसान हैं, आप भी कभी उनकी एज के थे, आपने भी ये गलती की हुई है. तो बच्चे जो हैं वो उससे there's a probability they'll learn faster and they'll learn for life. So that's how I feel stories should be engaged, not just inside school for a limited period of time, but it is a lifelong skill, and I think everybody should be able to tell at least some motivational stories. Yeah, because storytelling वही वाली बात है ना कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल वाइज चेक करें तो इट्स ऑलवेज कि इफ देयर इज अ स्टोरी टेलिंग तो हमारे ज़हन में एक वो इमेज आता है ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ किड्स. बट वी ऑल नीड स्टोरीज एंड आई थिंक वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन. एक हिस्ट्री भी है, ओरल हिस्ट्री टेलिंग की, रिलीजन में भी है, every other aspect. Somebody who is trained as a marketer, I can say कि marketing के उसमें when you're teaching them business schools में they are telling कि आपने story बतानी है. That's how you connect with your consumer. So yeah, it's everywhere, and that is why it's such an important thing, even though it's such an underrated thing. But taking from something that you said just now, which was using storytelling to give some sort of purpose, कोई idea बताना, जैसे आपने institution की बात की, professional institutions everywhere
Uh, Yeah. we'll go and we'll touch upon a bit of what the organization that you're currently working with. But even other than that, be it non-profit organizations, corporates, I think human resource का एक budget होता है set where they get their employees into these trainings, and वहाँ पे basically through storytelling they are being told about motivation and communication and everything. Yeah. But storytelling just with the focus of moral, and इसमें थोड़ा सा I will say कि जिस तरह, and I think one of the reason in my opinion and a couple of other common friends जो हैं हमारे, उनका भी ये opinion है कि story until unless उसका एक ही important purpose entertain करना नहीं होगा बच्चों को या किसी भी age group को, and उसके सिर्फ एक वो राइटर जो है उसके दिमाग में होगा कि मैंने मॉरल, आई नीड टू कम्युनिकेट अ मॉरल, तो वो हर लाइन में और हर उसमें जो है वो मॉरल फिट किया हुआ होगा, एंड वो स्टोरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा कि एंड द एंड में आपको पता है कि वो मॉरल स्टोरी है. हमारे बड़ों ने बच्चे चीख चीख के बताएंगे कि यही मॉरल है, समझ आ गया हमें. Exactly. हमारे स्पेसिफिकली इन उर्दू लिटरेचर, सो दैट्स अगेन that's a very different debate and we will have a separate conversation around that at some other point. Yeah. But हमारे उर्दू लिटरेचर का एक सेक्शन जो है that is sort of focused on it, specifically the literature that's focused on kids. वो एंटरटेन करना नहीं है, वो जी सबक ही सिखाना है उर्दू लिटरेचर में, सबक आमोज कहानियां. Exactly, and I think that is one of the reasons कि given with everything language evolution जिस तरह की है educational institutions में हमारे यहाँ, where every other subject is in English और एक उर्दू का subject जो है वो उर्दू में होता है, and instead of making it more interesting and more appealing or whatever, वो एक इस तरह की चीज जो है जब fill out होती है, तो from my personal experience and my understanding is the kids are sort of gonna rebel against it. पढ़ेंगे जरूर बिकॉज स्कूल का सब्जेक्ट है, पढ़ना है, नंबर लेने हैं, बट अदर देन दैट वो जो एक स्किल डेवलपमेंट, या आप देख लो बच्चे जो अदर अपनी रेक्रिएशनल रीडिंग जो बच्चे करते भी हैं उसमें दैट उर्दू लिटरेचर डजंट सॉर्ट ऑफ फीचर इन. सो इन योर ओपिनियन, irrespective of literature, what's your take on it कि even when you are using stories to give out a lesson or give, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि स्टोरीज जो ओरल स्टोरीज से आपका एक मेमोरी कनेक्ट हो जाती है, बट ये जो हर लाइन में, हर सेंटेंस में, हर जुमले में एक मॉरल गूंदा हुआ होगा, उसका आपके क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मॉरल्स जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है टू डिस्कस एक्चुअली, बिकॉज हमने अब क्या कर दिया है, मुझे काफी स्ट्रेंज लगता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो मॉरल एजुकेशन इज नाउ अ सब्जेक्ट, और मुझे ये चीज बहुत अलार्मिंग लगती है कि क्या हमने कुछ गलत हो गया है हमसे कि हमने अब इसको पढ़ाना शुरू किया है, दैट वी वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन अबाउट मॉरल्स. हालांकि दिस इज समथिंग दैट ऑलवेज केम फ्रॉम होम. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके जो मॉरल्स हैं ना, और या वैल्यूज हैं, वो आपके इंडिविजुअल हैं और आपके घर से आते हैं, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, या आपके माँ बाप मॉडल करते हैं आपके लिए, तो आप सीखते हैं. तो moral education as a teaching subject, I always find it really interesting, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर जितने मॉरल्स मैंने बच्चों को सिचुएशंस में समझाए हैं ना, वो दैट लर्निंग वाज ऑलवेज, जिसका मुझे फील होता था कि ये इसको समझ में आ गया बच्चे को बात. क्योंकि बच्चे को बात तब समझ आती है जब वो सुनने के मूड में हो, जब उसको इस चीज पे पूरा यकीन हो कि इस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट माहौल है, इसमें किसी किस्म के इन्फ्लुएंसेस नहीं है. मेरी टीचर मुझसे इसलिए नहीं बात करी कि मेरे अब्बा ने इनको कहा था इसको जरा समझाना बात. बच्चे जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं. एक्चुअली हमारी मिस्टेक ये है कि हम समझते हैं कि बेवकूफ सा है, इसको मैं इस तरह घोल के पिला दूंगी तो इसको समझ आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, और बच्चों को अगर आपने कोई लॉजिकल बात बताई है तो वो उसके ट्रेल को चलाते हैं आगे. आपके अंदर इतना बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप उस ट्रेल को उसके साथ चलाएं. बच्चे को तो आप एक बात कह के उसके बाद जब उसका नेक्स्ट सवाल आता है ना, तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है और आप बात को खत्म कर देते हैं, बिकॉज आप उससे ज्यादा इजाजत नहीं देते उसको बात करने की. तो ये एक बड़ा एक इट्स लाइक अ विशियस थिंग कि बच्चे को आप चाहते भी हैं कि वो मॉरली स्ट्रांग हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते. तो कहानियों में आपने डाल दी है मॉरल्स को,
बट कहानियां जो हैं unless and until they are narrated in a way that the children are a part of it, आप सिर्फ ये वो बहरे कान के साथ बैठ के आपकी कहानियां सुन रहे हैं. Now, literally, if I can just relate an incident from my teaching years, I was subbing a grade 3 classroom. और उनकी टीचर एब्सेंट थी, तो मैं उनकी क्लास में चली गई. अब ये वो बच्चे हैं जिनको मैं नहीं जानती, मैं इनकी टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के लिए गई हूँ वहां पे. तो बच्चों से मेरी जनरली मतलब बच्चों के साथ रैपो अच्छा रहता है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ उस मामले में बच्चों के साथ. तो मैं उनको कोई बात हम आपस में कर रहे थे, तो बच्चों ने किसी बच्चे की तरफ देख के कहा कि ये तो बहुत ही ये नालायक है, बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं करता क्लास में. आई मीन दैट्स द लेवल ऑफ इनसेंसिटिविटी दैट वाज इन द क्लासरूम. तो मैंने कहा कि अच्छा, उसी ऑन द स्पॉट आई जस्ट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, नॉट टू मेक देम अवेयर कि इन्होंने ये बात की है तो मैं ये कहानी बना रही हूँ. स्लोली इनटू के चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, समथिंग लाइक दैट. सो आई क्रिएटेड दिस इमेजिनरी कैरेक्टर जो घर से स्कूल आता है और कभी उसके यूनिफॉर्म नहीं इस्त्री हुआ होता, कभी उसने होमवर्क नहीं किया होता, दांत नहीं ब्रश करता वो, और हर वक्त किसी ना किसी के लंच को लेके खाता है, तो कौन सा बच्चा उसके साथ बैठना चाहेगा. तो बच्चों ने तो ऐसी शक्लें बनाई कि मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता हम ऐसे बच्चे के साथ क्यों बैठेंगे. तो मैंने इनसे रीजन पूछा कि भाई क्यों नहीं बैठोगे. तो हर बच्चे ने कोई ना कोई रीजन दिया. तो हमने बोर्ड के ऊपर वो डेवलप करनी शुरू कर दी स्टोरी. तो बच्चों ने कहा कि मैं तो क्योंकि और रीजन बहुत ठीक थे उनके, कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है और होमवर्क करना बहुत जरूरी है. दे गेव मी ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ हाउ लाइफ शुड बी. दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क, हैज एनीवन एवर आस्क्ड द कैरेक्टर, why is it so? Why do you not come with your lunch? Why don't you iron your clothes? Why is your homework never done? अगर आप उससे ये पूछो, let's say we are asking, what can be the reasons that कि वो नहीं होता. अब उन्होंने उसकी भी पॉसिबिलिटीज मुझे बताई कि हो सकता है उसके घर पे हेल्प ना हो सकता है. So they are the ones who said what is right, and they are the ones who came up with the ideas of what could cause it. What are the different reasons why a child would come to school without lunch or without doing their homework. वो भी list out मैंने सारा कर दिया. तो end of the day, I engaged the kids into the process of learning a moral, which was don't judge by appearances. It's important to look beyond the obvious. It's important to question things. When you see something ugly, it's very easy to say it's ugly, but it's a difficult approach to find out why it's ugly, and if anything can be done to improve it or to make it better. तो ये एक ऑन द स्पॉट स्टोरी थी, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी. लेकिन चूंकि मैं एक टीचर हूं और मुझे स्टोरी, आई बिलीव इन स्टोरी टेलिंग, एंड आई फील चिल्ड्रन, इवन दो दे न्यू कि ये झूठी कहानी है, ऐसा भी नहीं था कि बच्चे सोच रहे हो कि मिस ने कोई किस्सा सुना रही है हमें. चिल्ड्रन न्यू इट वॉज अ स्टोरी. Yet towards the end, when I said, can you imagine the life of a child who has no one to help him at home and comes to school and has no friends? Literally, there were tears in the eyes of some of those kids. और मुझे इस चीज पे हैरानगी हुई कि इनको पता है ये फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिर भी it has affected them to that point where they feel. तो उसमें होप ये होती है कि अगर क्लास में कोई बच्चा है ऐसा जिसके बारे में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, so now there is a little bit of hope that they would start to view that child differently, that they would start to ask questions. और वो बच्चा भी फील करेगा कि शुक्र है कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी ने बात की है, and now that discussion has somehow opened up. It might not solve the problem, but it will keep the child thinking for many years that कि ये चीज भी होती है. And if every teacher reinforces that thought, तो बच्चे के साथ पक्की हो जाती है, वो सीख लेता है वो मॉरल, फिर उसको समझ आ जाती है उस बात की. So I think you just have to be very real with moral teaching, because झूठी मूठी कहानियां भी अगर आपने बनानी है ना, तो वो बच्चों की लॉजिक के बगैर नहीं समझ में आती. लॉजिक इज द की हियर. आई मीन क्रिटिकल थिंकिंग इज द की हियर. आप सवाल ऐसे पूछें कि बच्चे सोचें, और फिर बच्चों को मौका दें कि वो सवाल करें, ताकि आप भी उस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलें. So it's a two-way process. You can't teach morals through just imposing words and pushing children to believe something.
especially if you feel a child needs to learn a moral, you have to create the scenario for that child. ऐसे मैंने बहुत दफा किया है स्कूल में कि मुझे किसी बच्चे की कोई एरोगेंस नजर आई किसी बच्चे में, या किसी बच्चे के अंदर मुझे कोई एलिमेंट ऑफ कि वो शेयर नहीं करता, बहुत सेल्फिश है, तो मुझे हमेशा, मैं सोच के जाती थी क्लासरूम में कि आज मैं ये करूंगी तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, बिकॉज टीचर इतना तो बच्चों को जान ही लेती है, दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल इन मेनी वेज। तो ये बच्चे करेंगे तो ये फंसेगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इस तरह से इसको कहानी लेके मैं चलूंगी तो इसको समझ में आएगी। सो आई थिंक यू हैव टू बी रियल in this. I hope that answers the question. Yeah, it does, and it also brings out a couple of other questions, discussion pointers as well. And ये जो specifically आपने बात की, इसमें दो तीन चीजें which something that stood out for me. One is कि ये जो हम बार बार एक term use कर रहे हैं, storytelling, it can play a key role in sort of developing empathy in the next generation, or not Absolutely. Just the next generation. And given कि हम कह रहे हैं कि storytelling is sort of एक ऐसा learning tool है जो किसी भी age पे impact कर सकता है on a human. जैसे in the intro trailer of mixtape की podcast में I used a Margaret Atwood Guy quote, which is you can't get rid of storytelling because humans sort of उनके plan के अंदर it's built into it. So empathy create करना, and given the world we live in today, where with everything that's happening, आप किसी भी country को उठा के देख लें, जिस तरह के हालात हैं, मैक्रो लेवल के, माइक्रो लेवल के, जितना एक वो polarized world is एक create हो रही है. I think empathy is sort of that bridge that needs to be created, and that sort of lagging काफी इंसिडेंट बी एट अमेरिका में, हमारे अपने मुल्क में, where you would, and somebody seeing those incidents from an external point of view would, if only each party is able to just put themselves in the other person's shoe, and this itna violence, itni polarization na ho, because at the end of the day it's all a human instinct or human plan jo hai, it's quite simple. So that in teaching आपका experience था, आपने एक दो incident share किए. Second, एक जो आपने you mentioned the fact of spontaneously creating story. So is it something that you sort of work into developing as a skill, or do you think because everybody has it, it's a potential that everybody has, but कोई brush up नहीं करता है, कुछ नहीं होता? Or do you think there are some external factors as well which are needed, which can trigger into developing this skill? As a teacher, obviously, this might be something that you have, worked on, polished and everything. But even for any other profession as well, given that ये इतना interesting tool है, इतना important tool है, that is capable of, empathy के लिए, communication के लिए. So do you think that everybody can, develop this skill? And if so, what tips can you give? I think storytelling जो है ना, it's part of everyone. So जिस तरह आपने कहा कि it's by default we are storytellers. But when I talk about teachers, I think they are stronger storytellers, because a teacher's impact on a child can be lifelong, चाहे वो positive है, चाहे वो negative है. So that's the power of a teacher. तो वो जो इतना close connection होता है ना आप किसी बच्चे के साथ आपका, वो उसको अक्सर लोग underestimate करते हैं, and especially that is not something that you will learn in your school if you're getting a degree for teaching, let's say. ये एक ऐसा experience है, when you enter your classroom with your first set of children, it's a completely different classroom than what you envisioned when you were learning about how to manage a classroom and everything. A real classroom, I can tell you, the learning that happens in a real classroom happens outside whatever you decided would happen in the classroom. It's always the opposite of what you thought it was going to be like. So एक अच्छा teacher जो होता है, वो अव्वल तो इस चीज को develop होने में, like you said, it takes time to brush up this skill. But then you have to be interested as well.
मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों का पता है जो बहुत ड्राई टीचर्स थे. दे वुड एंटर द क्लासरूम, दे वुड come up with there would be millions of opportunities that would come up for certain children जिनके बारे में वो सारा वक्त रोते रहते थे कि ये तो सुनता ही नहीं, इसका तो ये मसला है, उसका वो मसला है. लेकिन उसका मसला हल करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती थी, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड. दे हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट. सो एक तो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. आप कोई कहानी तभी बनाते हैं जब आपको आपका कोई उसके अंदर देयर इज समथिंग टू गेन फॉर यू इन इट एज वेल. अब मैं एज अ टीचर अगर देखूं इस चीज को, तो आई वुड से आई गेन अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है. वो हर बच्चा एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता. आपने एक प्लान ए बनाया है, आप 10 बच्चों के ऊपर डालें, हर एक का डिफरेंट रिएक्शन होगा. तो मेरे लिए वो लर्निंग है एज अ टीचर. सो आई कैन हैव लाइक सो मेनी केस स्टडीज इन फ्रंट ऑफ मी कि जब मेरे पास एक नया लॉट ऑफ बच्चे आते हैं तो मुझे 10 का तो काइंड तो पता है कि ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है. तो ये मेरी अपनी एजुकेशन है. आई एम इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग एज अ टीचर. तो मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले बच्चों में होना चाहिए. उसके बाद बच्चे की जो वो किस तरीके से हो सकती है, अगर उसमें स्टोरी टेलिंग एक पार्ट है तो आई वुड वांट टू लर्न अबाउट इट. और एक अच्छा स्टोरी टेलर वही होता है जो ह्यूमन इमोशन को इन डेप्थ समझता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही वर्ड है कि इफ यू आर हैप्पी यू आर जस्ट हैप्पी. ऐसा नहीं है. आप हैप्पी हैं, यू माइट बी डिलाइटेड, यू माइट बी आप एक्सटेसी में हैं. इसके एक इमोशन के इतने सारे वेरिएशंस हैं कि अगर आप वो सारे वेरिएशन समझते हैं, वो तभी आता है जब आप बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं. तो टीचर से ज्यादा लकी और कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपकी क्लासरूम में 30 बच्चे हैं ना, तो दैट इज 30 अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू लर्न कि बच्चे किस चीज को, कितने डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इमोशंस इस वक्त आपकी क्लासरूम में चल रहे हैं. इट इज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर द सेम रीजन, बिकॉज जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है क्लासरूम में और जो एनर्जी होती है, वो कभी कभी मैनेज करना अच्छी खासा मुश्किल काम होता है. जब टीचर्स नहीं मैनेज कर पाते तो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि हर बच्चा अपनी एनर्जी लेके आता है. घर में किसी के अगर कोई मसले चल रहे हैं, वो बच्चा एक डिफरेंट माइंडसेट से एंटर होता है क्लास में. आप अपना प्लान लेके गए हैं बच्चों के लिए, और ये भी मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं. वंस आई टुक अ प्लान, और वो क्लास बहुत ही बबली, very energetic, the best classroom I've ever taught, but the most difficult one. Because क्या होता था कि मैं उनके लिए जब कोई लेसन बना के लेके जाती है ना, लेसन प्लान्स यूज्ड टू बी एक्सटेंसिव. आई यूज्ड टू थिंक अबाउट एवरी सिंगल डिटेल. तो मैं बहुत चीजें डालती थी उसमें. मैं रोज जाती थी प्लान लेके, बच्चे उसी एनर्जी से शुरू होते थे, एक सवाल करता था, वो बात कहीं और चली जाती थी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ माई क्लासरूम एवरी डे विदाउट मीटिंग द गोल्स आई वुड सेट. सो मुझे एक फ्रस्ट्रेशन और एक स्ट्रेस का लेवल था. Because आपको पता है स्कूल्स के अंदर, schools are so scientific now. The art, this is another thing, like the art of teaching has been overpowered by the science. अब उसमें इतनी साइंस डाल दी गई है कि teacher has literally been stripped of, stripped of the right to make decisions, on the spot decisions. अब ये है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप ही एडमिनिस्ट्रेशन में खड़े होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं कि आपने ये क्यों किया. पहले टीचर्स को बहुत आजादी थी. तो मैंने क्या किया कि मैंने वो लेसन प्लान, एक दिन मैं क्लास में घुसी, इसी तरह बच्चे उसी हाइप लेवल पे थे, तो मैंने लेसन प्लान उनके हाथ में पकड़ा दिया. मैंने कहा मुझे पूरा दिन लगा था ये बनाने में. अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सीखना चाहते हो, कैसे सीखना चाहते हो. तो हियर्स द चैलेंज, सारे बैठो, एक लेसन बनाओ जिसमें तुम सब खुश हो, और मुझे दे दो तो मैं वो तुम्हें पढ़ा दे. तो उससे ये हुआ कि बच्चे जो थे पहले तो शॉक में आ गए, फिर वो एक्साइटेड हो गए. दे फेल्ट द चैलेंज कि अच्छा इसने हमें चैलेंज किया कि हम बनाए इसका लेसन. अब वो बैठे तो इतने झगड़े उनके, क्योंकि वो क्या मैंने ऐसे नहीं सीखना, वो क्या मैंने ऐसे नहीं करना, वो क्या इसको डालो इसमें. तो इन द एंड द लर्निंग दैट दे लर्न वाज दैट रिस्पेक्ट पीपल्स टाइम, रिस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम somebody spends on creating something for you. और उसके बाद इमेजिन द टीचर्स माइंडसेट कि वो 30 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में सोच के फिर एक लेसन बना रही है, और वो वेस्ट जा रहा है. So what a big waste that is. So there were so many things to learn in that, and that again was not planned. It came out of my instinct, it came out of my on the spot thing कि this is a little too much. So they deserve to be told a story that goes around, like what if it was you,
You know, it's a what if question. What if you were teaching and not me? So what kind of a lesson plan would you make? So बच्चों ने वो बैठ के जब किया पूरा प्रोसेस, तो they understood the process. You know, we underestimate kids. अगर आप उन्हें प्रोसेस समझाएंगे तो वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, because process is very difficult. So I think that to quite an extent, as a teacher, you have to have the passion. Education and becoming a teacher is not a dream. It's not something idealistic. It's something where you have to learn skills. You have to allow yourself to fall into the system. You have to be ready to do 1 million multitasking things. You know, you have to be ready for everything. But at the end of the day, it is about raising a good child. It's about raising a generation of children who understand, who have good values, good morals, and are going to carry a narrative that is going to be a positive one, that's going to be a hopeful one, and an accepting one, a tolerant one. So ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. And I think चाहे वो किसी और फील्ड में भी लोग हों, wherever they can influence another individual in a positive way, but through, like I said, you know, कोई सिचुएशन उठती है तो उसको रिकग्नाइज करें, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें. एक अच्छे टीचर की या किसी भी अच्छे इंसान की यही निशानी है कि वो अगले का भला देखता है उसमें. वो ये नहीं सोचता कि मैं अब इसको क्या समझाने बैठूं. वो ये सोचता है कि इसका भला होगा, मैं इसको लेकिन इस तरीके से करूं कि ये उसमें एंगेज हो जाए और ये खुद ही सीख ले. आई डोंट हैव टू से इट, दे हैव टू लर्न इट देमसेल्व्स. Yeah, ये this is a very interesting point. वही वाली बात की, I think reinforce एक तो empathy वाली बात, वही जो भी आपने लास्ट में बात की ना, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी थोड़ी सी वो एक ना सीनियरिटी जूनियर्स और वो एक वो सॉर्ट ऑफ एक not exactly like a sort of an environment of it where the relationship is that of a teacher and a student, but वो एक टसल हो रही होती है ना कि somebody senior is like मुझे सारा कुछ पता है, जूनियर को नहीं पता. वो एक वो जो हमारे को हायरार्की का एक होता है इशू. And even in whatever my experience also has been, until unless somebody is, I think आप एक जूनियर के साथ ज्यादा बेहतर बात तब कर सकते हो when you are sort of, you know, trying to do it subtly, या teaching them by example वाली चीजें, instead of just saying I am the senior, I know, just, you know, देखो वो ना वो सिलेक्ट करो रैंडम किस्म की और फिर सीखो. So that अब तो मतलब the environment is such कि if you tell a junior teacher to go observe a senior teacher or any teacher who's doing well or is someone strong in that area, there is literally so much ego, there is literally so much of like मैंने तो इधर से पढ़ा है, मैंने तो यहाँ से डिग्री ली थी, तो इसको क्यों देखना है. I mean, I'm an accidental teacher, you know, I come from a family of teachers. तो मैंने तो जब ग्रेजुएट किया तो I just walked into a school to give my CV. उन्होंने मुझे उसी वक्त रख लिया. I had a little bit of experience looking at my mother who was a teacher, my cousin who was a teacher. तो मैं उनको देखते देखते मुझे थोड़ी बहुत, but I was literally like naive about teaching. I had no idea, which I felt was such a strong thing for me as well. Because जब मैं अंदर घुसी तो फिर मैं बच्चों के साथ ही चली. You know, जिस तरह बच्चे चल रहे थे वैसे मैं चली. That's why I'm always pro children. I'm definitely a children's teacher. I'm not an administration's teacher. I'm not a school teacher. I am a children's teacher. जो बच्चे जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मुझे पता है मुझे उन्हें क्या डिलीवर करना है, मगर मैं उनको उस तरह डिलीवर करूंगी जिस तरीके से उनको चाहिए. इस पॉइंट के ऊपर हम मजीद मतलब इसको इलैबोरेट इन द सेंस कर सकते हैं कि देख लें आप, स्टोरी टेलिंग जो है हम अभी भी उसे ऑथेंटिक वे में करना चाहते हैं. यू नो, हम अभी भी चाहते हैं कि हम फिजिकली बैठें, बच्चों को बिठाएं और उन्हें कहानी सुनाएं. बच्चे अब they've moved into digital storytelling. They are now into that space where they have so many avenues to explore telling stories, to listen to stories, that it seems like it's ridiculous कि हम अभी भी वही अपने standards लेके बैठे हुए हैं कि हमें उसी तरह सिखाना है. अब मेरे बच्चों के स्कूल में एक डिबेट थी, they called all of us parents, and it was about catching children on online gaming and then making sure कि online gaming जो है उसके एक certain time period set करें, बच्चे किससे बात करें. All of those, I agree with that as a parent. You know, I am worried about my children spending too much time, or I'm worried about my children, who are they interacting with, because up to gaming is also like all over the world. But then it gave me that. As an educator, I look at it differently. अब मुझे ये सोच आई कि अगर ये बच्चे इसी के साथ लगे हुए हैं 24 घंटे, तो हम क्यों नहीं अभी तक हमने सोचा कि हम इस एवेन्यू को एक्सप्लोर करें और उसको स्कूल में कहीं से लाएं. बच्चे अगर ऐसे ही सीख रहे हैं 24 घंटे गेमिंग ही करें, और आप
यकीन कर लें कि एक दिन मैंने वो कंट्रोल पकड़ा खेलने के लिए, तो मेरी उंगलियां ही उसके ऊपर पूरी नहीं आती थी। और बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो दे आर सो स्किल्ड विद इट, यू नो, द टाइम, द स्पीड, the presence of mind to know which one to click at which time, and in such stressful situations in the game, it already tells you that they are intelligent and brilliant enough to do it, you know. They can get through a conflict really well in a story, or video games are storytelling. There's so much happening in that. अब वो एक विजुअल बन गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि खेल रहे हैं ना, ये तो गेमें खेल रहे हैं बैठ के, वक्त जाया कर रहे हैं। हालांकि हमें सोचना चाहिए कि इसको अगर बच्चे इससे ज्यादा जल्दी सीखते हैं और बच्चे जो हैं वो इसमें स्किल्ड हैं, हमसे ज्यादा स्किल्ड हैं, तो हम अपने आप को बेहतर करें, हम इसको इंगेज करें, हम अब ख्याल रखें कि क्या कहानियां सुना रहे हैं ये हमारे बच्चों को। You know, we should be interested in knowing if our children are playing something, what is the message that's coming out of it. I've literally seen games which are just about killing a random person, or you know, going along, and it's disturbing actually to see कि बच्चे किस तरह की गेमिंग करते हैं, और फिर वो क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता होगा कि अम्मा सिखा रही हैं ये करो, तो गेम कुछ और सिखा रही है, और गेम का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर है, यू नो। सो दैट्स समथिंग वी शुड थिंक अबाउट, कि इसको अगर हमने पॉजिटिव में बदलना है तो फिर वी शुड गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यू नो, वी शुड इनकरेज इट, बट वी शुड इनकरेज इट बाय क्रिएटिंग नाउ गेम्स वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। शायद स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं सीख रहा, लिख के नहीं सीख रहा, तो उसके लिए कोई गेम ही ऐसी बन जाए कि वो उसे खेले तो वो उससे जल्दी सीख ले, यू नो, इट्स अ मच बेटर मीडियम फॉर हिम। I mean, storytelling, I can tell you, is such a strong medium in the sense that, you know, वो हर तरह के लर्नर के लिए बना है। अगर आपका लर्नर विजुअल है तो जो फिगरेटिव लैंग्वेज आप उसको पेश करते हैं उसकी एक तस्वीर बनती है जहन के अंदर। अगर वो ओरल है तो the choice of words are what is going to create, you know, again a picture for him. And you know, gestures of the storyteller is going to teach him so much about, you know, what they are talking about or what they're trying to create. Even kinesthetic, जो हाथ लगाने से सीखते हैं, they are able to touch an emotion, you know, किस लेवल के इमोशन पे आप टच करें through your storytelling. So जब आपके पास इतनी डाइवर्स प्लेटफॉर्म आ गया है, जहां पे आप ट्विटर उठाएं तो आपको पॉलिटिकल नैरेटिव्स मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम उठाएं तो आपको सेल्फीज आर आल्सो योर पर्सनल नैरेटिव, यू नो, यू आर सेइंग समथिंग टू समबडी। आप यूट्यूबर्स देख लें, आप यू नो, एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल टुडे। टिकटॉक देख लें आप, यू नो, पीपल आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स लेफ्ट एंड राइट। Some of that expression is good, some of that expression is negative, but that's true to the world, you know, that's true to us human beings. We are not all good, you know, we all are gray. हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, इसी तरह चीजें ऐसी ही होती हैं। You have to select, you have to choose, and that's where it becomes important to be wise, to be knowledgeable, to be a critical thinker. हमें अपने बच्चों को critical thinking सिखानी है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे दुनिया में बाहर नहीं निकलेंगे। मेरे घर तो बहुत प्रोटेक्टेड है। मेरे अपने घर में जब मैं बच्चे देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक पेरेंट थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि मेरे बेटे का सेक्शन चेंज करें। तो मैंने कहा क्यों करें आपके बेटे का सेक्शन? तो उन्होंने कहा ये इसकी क्लास में एक और बच्चा है, ये गालियां बहुत देता है, तो मेरा बच्चा गालियां सीख रहा है, तो मेरे बच्चे को आप दूसरे सेक्शन में डाल दें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको डाल देती हूँ, लेकिन जब बच्चा आपका दुनिया में बाहर निकलेगा तो वहां गालियां नहीं होंगी। आई मीन, इट्स नॉट टू प्रमोट, जाहिर सी बात है हर बच्चे के अपने इश्यूज होते हैं, हर बच्चे को टीचर बेहतर समझती है कि किस बच्चे के क्या इश्यूज हैं, वो क्यों ऐसे करता है, इनको आपस में किस तरह, हाउ डू दे हैव टू लिव टुगेदर, यू नो, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर हम बच्चों के सेक्शन ही चेंज करते रहेंगे तो फिर हमने उनको कुछ सिखाया तो नहीं ना, वो तो हमने कहा निकल जाओ बेटे, जहां नहीं दिल करे वहां से निकल जाओ। समटाइम्स यू हैव टू कोएग्जिस्ट विद पीपल, and so you have to have the skill to tolerate, you have to have the skill. So वो भी एक कहानी है जो आपको पेरेंट्स को सुनानी पड़ती है। आप सोचते हैं यार ये इतना बड़ा ग्रोन अप फादर है, मैं इसको बैठ के ये कहानी सुना रही हूँ कि सर आपका बच्चा अगर कल दुनिया में निकलेगा तो फिर वो आप तब क्या करेंगे? You can't protect your child all the time. So it's good actually. मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि मेरे बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना, तो मैं अपने हस्बैंड को यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने घर में कर रहे हैं ना, जितनी करनी है कर ले, यू नो, बिकॉज सारी लर्निंग यही हो जाए तो अच्छा है। एटलीस्ट निकलते वक्त बच्चे स्ट्रांग होते हैं, उनकी समझ बेहतर हो जाती है। अपने घर में जितनी डांटे खानी है खा लें, जितनी मारें खानी है खा लें, जब बाहर निकलें तो व्हेन दे मीट द वर्ल्ड
They're much wiser. They understand better. So I think पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो दे हैव टू लर्न टू लिव विद ईच अदर, यू नो, हर चीज जो है, दैट्स व्हाई आई से टॉलरेंस इज सच अ रियल इमोशन. सम पीपल जस्ट श्रग इट ऑफ. जैसे कि नहीं, टॉलरेंस बहुत नेगेटिव होता है, इसके कॉनिटेशन इज वेरी नेगेटिव, लेट्स टीच आवर चिल्ड्रन अबाउट एक्सेप्टेंस. बट द ट्रूथ इज कि अगर हेट्रेड एक रियल इमोशन है तो फिर टॉलरेंस की जरूरत है हमें. अब हर चीज को एक्सेप्ट करना भी ठीक नहीं होता, कोई चीज कभी एक्सेप्टेबल नहीं भी होती, तो आप उसको फिर किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? यू नो, यू हैव टू देन टॉलरेट इट. तो टॉलरेंस एक स्किल है जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है, और ये बेहतरीन तब है जब आपके पास एक सिचुएशन है क्लासरूम में. दिस इज द बेस्ट टाइम टू टीच देम अबाउट टॉलरेंस. कि कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हमने ग्रुप वर्क नहीं करना, मुझे ये बंदा नहीं पसंद, या मुझे इसके साथ मिलके नहीं करना. आप फिर भी उनको फोर्स करते हैं कि करो, एंड देन यू सेट द रूल्स फॉर देम. यू से कि ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करो और इसको ब्रेक नहीं करना. एंड देन स्लोली यू सी कि पसंद तो नहीं है उनको एक दूसरे के साथ, लेकिन दे डू इट फॉर द, यू नो, फॉर द रीजन दैट, यू नो, दिस इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, वी आर गोइंग टू बी स्कोर्ड, हम इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, तो चलो लेट्स गेट टू इट एंड डू इट. That's how you engage, you know, children in positive stories. Yeah, because it's very true about tolerance, because even again, as you said, not every thing needs to be accepted, but tolerance, but it doesn't mean that if you can't accept something, you have to jump directly to hatred. You have to reject it. In professional world as well, there are people, you will come across people, you just, वो एक होती है ना, वो वाइब वाली चीज होती है कि आपकी नहीं, उनके साथ वाइब नहीं है, स्टार्ट ही गलत होता है. बट यू हैव टू वर्क विद इट, यू नो. सो अब क्या आप एक, do you want to create a toxic environment around it, yeah, you want to, you know, sort of create an environment where you can, you know, tolerate each other and, you know, have a large chunk of your adult life is spent at your workplace. उसको अगर आप toxic बनाएंगे तो वो आप घर भी लेके कोई टॉक्सिसिटी जाएंगे, फिर हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेंगे. You know, if you look at it from storytelling point of view, you're always in charge of changing the narrative. You're always in power of changing the narrative. अक्सर औकात मैंने देखा है कि जब लोग कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अब इसने यही करना है, and you do just the opposite of that, they are in shock. You know, you have to take people by surprise. यानी आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इसको, आपको तंग कर रहा है या जानबूझ के आपको ऐसे कर रहा है, यू नो, कि मैं इसको इंस्टिगेट करता हूँ इस चीज के ऊपर, बिकॉज दे नो योर वीकनेस, दे नो कि ये आपकी कमजोरी है. एंड इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, सी अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन इन इट. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अच्छा यार इसने इस दफा ऐसे किया ना, तो मैं ऐसे कर लूंगी. तो फिर कुछ अर्सा यू नोटिस द पर्सन हैज गॉन इनटू डीप शॉक कि ये क्या हुआ, एंड देन दे बिगिन टू रियलाइज हाउ शैलो दे आर, दैट दे ट्राइड टू डू समथिंग एंड यू आर मच बिगर देन दैट. So there's always the opportunity to change the narrative. You know, you can always change the story because you're in charge of it. Like nobody can decide for you things. Like literally, I've worked with people in school who have put me into difficult situation and then thought कि ये तो, you know, I was very well respected at work. So मेरे लिए एक माफी मांगना लोगों के लिए ऐसे था जैसे ये इस पॉइंट पे हम इसको ले जाते हैं जहाँ पे इसका ईगो इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि ये, you know, she would be so hurt she would leave, you know. ऐसे भी लोग आपके काम पे आपको मिलते हैं. तो मैंने उसके लिए, मैंने बगैर सोचे समझा, I didn't make up my mind that I'm going to do something like this, but because I'm interested in these things, because stories matter to me, तो मेरे लिए instinctive था that I apologized for something I had not done at all. मैंने उसके लिए माफी मांग ली. तो मैंने जब माफी मांग ली तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सका उसके बाद, बल्कि लोग शर्मिंदा हो गए कि हमने इससे माफी मंगवाई, you know, which was something unexpected. They really thought कि ऐसे तो होना ही नहीं है किसी सूरत. So I think sometimes you need to surprise people with a different side of the story. You know, you have to create a different side to your story. Yeah, and I think to be able to do that, I don't know, for a lack of a better word, open-mindedness, ability to be able to evolve yourself, not have humility and evolve with every situation. अब जैसे आप अपने एग्जाम्पल शेयर किए about you know, father coming in and asking किसी क्लास शेयर करें. I know and जब आप वो बात कर रहे थे तो and the thought that came to my mind was कि given, and specifically talking about Pakistan and the educational system that's here,
there is a, वो हम कहते हैं ना कि in other places we can maybe expect, or the general norm is a general expectation with education and education institutions is that people go there so they can have opportunities. So ideally, an education institution would be some place where people from all backgrounds, all socio-economic backgrounds, and this is something जो एक ज़माने में होता भी था यहाँ पे, in this very country, जाते थे, and they would learn and they would be able to, better themselves for whatever you want to call it. Now there are some institutions, and given that say it would two sort of educational system here where there's a privileged class. If your parents can afford, and luckily our parents could, we were put up where वो English medium schools हैं, आपकी language skills जो हैं, English communication skills आपकी better हैं, you have better opportunities, O levels किया है, A levels किया है, and then there is the segment which goes to the local system, which is the metric and the FSC and the FA. बिल्कुल बिल्कुल. This is something that I know personally. It's not hearsay. There is a local private college, university के लिए, जहाँ पे at an undergrad level जो sections change करने वाली आप बात कर रहे थे ना, obviously वहाँ पे O levels वाले बच्चे भी जाते हैं, FSC वाले बच्चे जाते हैं, and there is one section where the kids were like, we need to change the section because we don't want to be in the same section जहाँ पे FSC या FA वाले बच्चे. And so there's a class thing there. Yeah, and when I got, because they have this assumption that kids who do FSC and FA wale, their intellectual capabilities are not up to their par, and which is not true at all. Yeah, like absolutely. मतलब जिस तरह का हम कुछ, I am now, and in my professional career, in the position where I can seeing these graduates entering the workforce, and halat बहुत depressing लगते हैं मुझे at time. आपने O levels किया तो आपका दिमाग जो है वो बहुत right है, it's just that खुला होगा. It's just that actually that's the opposite right now, It's just that your parents should afford it, so no credits to you. So that is also something which is problematic है कि when you are going in a workplace, everybody is coming from a very different background, families different हैं. There are people who are sort of first generation people who have, and you should be appreciating them because उनकी background में ऐसा नहीं था, the struggles they have went through, and they brought themselves to a position जो आपको sort of you felt like a rite of passage, because of your family background, whatever. So yeah, I think if storytelling plays a great part in it, आपको एक breaking stereotypes is a huge part of storytelling. Breaking stereotypes is a huge part of, जैसे अगर आप किसी एक if you've lived abroad, you would know that जब आप एक mixed community में पढ़ा रहे होते हैं तो आपके एक certain notions होते हैं, एशियन बच्चे हैं ये इनके साथ मसला नहीं होगा, ये अरब बच्चे इनके साथ ऐसे होगा, ये फलाने बच्चे यूरोपियन बच्चे इनके साथ ऐसे होगा. The point is that अपनी language में सभी intelligent होते हैं. Because वो आपका mode of communication है, you can express yourself best through that communication, through that language. अब जो expectation set करनी है वो आपका काम है. When we talk about equal opportunity, or when we talk about quality education, let's take that for a example. अब quality education की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग उसको interpret ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब अच्छे स्कूल में जाना, it's probably going to a better school. But quality education is actually providing quality education to everybody. Like it's everyone's right to get the same kind of resources, the same kind of teachers, the same educated, atmosphere or environment for learning. आप जब quality education की बात करते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ज़हन में है कि ये community जो है ये तो अगर मैं इसको ये वाला lesson deliver करूँगी ना तो ये तो on a scale of 1 to 10 will get stuck at 2. तो मैं ऐसा करती हूँ इसको मजीद कम कर देती हूँ, इसकी क्वालिटी को नीचे ले आती हूँ ताकि ये तो 2 में भी इसको इतना दूंगी बस ये इतना ही करेंगे, और ये वाली जो कम्युनिटी है इसको मैं ये दे देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत स्मार्ट है. कुछ को होते हैं एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एजुकेटेड बैकग्राउंड्स, ऑफ हैविंग अ लैंग्वेज एडवांटेज. बच्चों को
फर्क पड़ता है इन चीजों से, दे डू परफॉर्म बेटर। मगर पॉइंट ये है कि आपका तो ये आपका एनालिसिस नहीं है एज अ टीचर, कि आपने डिसाइड करना है कि किसको क्या दूं, किसको क्या चाहिए। योर जॉब एज अ टीचर इज टू गिव देम बोथ द सेम, बट देन प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द चाइल्ड हु इज स्ट्रगलिंग। ये आपका काम है कि आपने उसको, आप रियलिस्टिकली सोचें कि अगर ये बच्चा 2, इसकी एबिलिटी अभी फिलहाल 2 पे है ना, अगर इसको मैंने ये चीज दी, तो इसको मैं हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ, टूल्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ इसको मैं 6 तक ले जाऊंगी। ये 10 पे फिर भी नहीं जाएगा, लेकिन ये 6 तक जरूर चले। यू आर गिविंग द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू better their circumstances and improve their circumstances. You can't have that stereotype in your head where you believe कि ये 2 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है। आपका तो ये काम नहीं है। आपका टीचर का किसी सूरत ये डिसीजन नहीं होता। टीचर का काम होता है एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, फिर उसके वेरिएशंस बनाना, फिर किसको कितनी सपोर्ट चाहिए उनके सपोर्ट ग्रुप्स बनाना, उसके बाद उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो इंक्लूसिव एक एनवायरनमेंट फील हो। तभी बच्चे फेयरनेस भी फील करते हैं। और ये जो एम्पैथी का एनवायरनमेंट है, ये बनता ही ऐसे है जब आप कलेक्टिवली एक कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स इकट्ठे कर लेते हैं ना, एक कम्युनिटी बन जाती है। फिर किसी भी बच्चे में जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो खत्म हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई मेरी क्लास के बच्चे को कोई बुरा क्यों करे। वो आपका एक मेंबर बन गया है, वो आपकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया है। ये टीचर क्रिएट करता है क्लासरूम के अंदर, बट नॉट अलोन। टीचर अकेला, द रेशियो इज 1:30. There are 30 kids there. So the reality is that the 30 kids are actually running your classroom. It's not you. So जो आप create करेंगे वो ही vibe चलेगी। तो आप कोई set up a story or create that vibe, where the learners are positive, they are fair, and they are also cooperative. They collaborate, they cooperate with each other ताकि हर बच्चा improve करे। और ये बड़े आसान तरीके होते हैं। इन चीजों को जब आप विजुअल्स में चेंज करते हैं ना, आपका एक बुलेटिन बोर्ड है, उसके ऊपर आपने हर बच्चे की ग्रोथ अलहदा दिखाई है, एंड देयर इज सेलिब्रेशन ऑफ ईच पॉइंटर एज यू मूव अप। इट्स वेरी इजी फॉर चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, मगर आपके अंदर खुद वो बायस नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट रूइंस इट ऑल, एंड अ सर्टेन बिलीफ के बस ऐसे ही होता है। Things change, even if they are that way. You have to believe that, to change the story, you would have to be, you would have to do something different. You can't be doing the same thing. True, true. You touched up also upon the fact that gaming, tech and Islamic storytelling, and I don't remember the name of the filmmaker, but he said, I think some time back, the future of storytelling is gaming. He didn't say film, he didn't say big screen, he said gaming. And while not like मेरा gaming का I think limit was Atari, जो पहली दफा पैसे जो खरीदी थी बचपन में, उसके बाद तो खास गेमिंग का इतना इंटरेस्टिंग डेवलप हुआ। But I know I have friends who are like hardcore into gaming, वो हर console और वो हर update and XYZ they are involved in it. And when you talk to them, so वो भी जब आपसे बात करते हैं, they tell you कि they're not there just for the blazing guns or everything. There's also a story. Even some of the most violent games जिस पे हमारे यहाँ सिर्फ वो ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, सोसाइटी में वायलेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे वो वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं। बट व्हेन दे आर सीइंग दैट, वो उस वायलेंट गेम्स को भी दे नरेट एज अ स्टोरी कि देयर इज अ स्टोरी इन दिस, देयर इज दिस गुड, दिस evil, देयर इज दिस ग्रे, एंड देयर आर टाइम्स वेयर स्पेसिफिकली अगर आप टीनेज ग्रुप्स में देखें, देयर इज एक एग्रेशन होती है व्हिच एक आउटलेट ऑफ aggression होता है. So this is what they see these gaming format as. Well, and you're very right कि I think it's high time कि the people in charge sort of see कि instead of sticking to the same models, the COVID ने हमें बहुत आसान तरीके से बता दिया। मतलब इकोनॉमी का हम वो सारे रोना रो रहे थे। अभी रिसेंटली एप्पल ने, फेसबुक ने और निटेंडो ने अपने लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स शेयर किए और वो प्रॉफिट्स उनके जो है ना वो सब कमाई की है उन्होंने। इवन निटेंडो का तो ये है कि उन्होंने अपना जो फोरकास्ट है उसको डबल किया है, बिकॉज they were thinking कि हम कम करेंगे या बिकॉज अब लोग गेम्स नहीं खरीद रहे बिकॉज हालात नहीं ठीक, पेंडेमिक है। लोग गेम ज्यादा खरीद रहे हैं बिकॉज दे नीड, घर में लॉकडाउन में उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
and again, before we head towards digital storytelling, and आपका जो why teacher वाला एक platform है, and I also want to touch upon the fact you do some these digital videos with your kids, and I'm really interested in it. उस पे भी हम बात करेंगे. You said ना transformation होती है into game format. I'll just share an experience. In Pakistan, one of हमारे एक author हैं मुशर्रफ अली फारूकी. So he is also very much interested in this concept of storytelling and using it in जिनकी story kit है, I think. Exactly. So story kit को मैंने first hand implement होते हुए देखा in a school for street children. So my mother was part of this non-profit organization initiated by her colleagues, a group of doctors known as the SR Trust in Pakistan. So after she passed away, so the board very kindly sort of gave me her chair in that. तो उस पे खैर उनका एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का स्कूल है जहाँ पे शाम दोपहर के टाइम पे बच्चे आते हैं उस एरिया के, एंड प्रॉपर स्कूल है फ्रॉम लाइक स्मॉल क्लासेस 10th grade तक. तो वहाँ पे बिकॉज हमारी मैं हमारा जो हमारे another mutual friend we know him, so उन्होंने जब ये बताया कि प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने भी ऑफर किया. मैंने कहा एक नॉन प्रॉफिट है दे रहा स्कूल, तो उस पे कोई आके बता दे. So they have these small story kits. उसके साथ वो है स्टोरी है, एक नरेटर आते हैं वो स्टोरी सुनाती हैं. अच्छा, I have been following them. I think they're doing a wonderful job. And like I मतलब that was the first time those kids had that storytelling का experience. और उसके साथ एक board game है जो बाद में उसी story. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब now I was there and this I forgot the name of the storyteller, but this was this woman who came in and they're volunteers. उन्होंने story याद की सारा कुछ. उन्होंने पहले class की ना वो change किया because the kids were sitting on the floor अपने rows में. उन्होंने तो थोड़ा सा semi circular सा बनाया, and then she started एक angle से शुरू उन्होंने बताना शुरू किया story. फिर she was changing locations, she was अपनी आवाज की tone change हो रही थी. तो एक वो हाइट टाइम आता था तो एक बच्चे के पास जाके बैठ गया तो बच्चे तो the surprise element. Exactly. So वो जो आपकी बात है ना कि the kids these are street kids, they are not going back to very intellectual households या वो सारे but the way they were able to follow that narrative and then follow up, उसके बाद उन्होंने question answers किए story के बाद, and they remembered stuff and they interacted with the storyteller and then they played the game and सारा. So that impact was, seeing that first-hand impact was also sort of basically what additionally fed into my, this fascinating storytelling. That this can do wonders if explored and done, incorporated in the education system. Bilkul, and there are very few such initiatives in Pakistan. Actually, there are very few initiatives. Like I said, कि हम इसको बहुत हमने limit किया हुआ है. इसका scope बहुत huge है और हमने इसको इस तरह से लिमिट किया हुआ है कि बस वही बात है कि बच्चा होगा तो फिर कोई कहानी होगी, वरना कहानी नहीं. Exactly. So that is the misconception that people have about storytelling. So moving on to digital platforms and the fact that you आपको traditional forms of storytelling नहीं सिर्फ चाहिए, you have these tools and you can use them. So talk about the Why Teacher initiative and उसका why did you ended up creating it, उसका scope क्या था. And also then touch upon the fact that one word storytelling thing you do with your kids. The 1 minute story. Yeah. So 1 minute story where you have your 3 boys around and will be very interesting. I follow those videos. They're very interesting. And as you know, your youngest son is my best friend, even if he doesn't know that. But so yeah, just talk about those. He teaches me a lot actually. I think the Why Teacher ka initiative जो है वो तो purely came out of when I left teaching after 17 years. It was the first time I was sitting at home. और ऐसा नहीं है कि I've always been a very expressive person. So जब मैं नौकरी कर भी रही थी तब भी मैं अपना blog लिखती थी with the name of I'm Awake. And the very title I'm Awake suggested that as long as your conscience is awake, you as a teacher, you are never going to miss out on anything that's important. As teachers, we worry about making mistakes, but teachers are real people, और mistakes को भी हमें identify करना पड़ता है कि mistake क्या चीज mistake है आपके लिए actually. But
अगर आपका कॉन्शियंस जो है वो अलाइव है एंड यू फॉलो योर कॉन्शियंस, एटलीस्ट यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू रिग्रेट, or you're not going to create a mistake that's going to be a regret for somebody else. So I'm Awake was basically a blog that I started writing in 2011. तो समझ लें कि जो तो Why Teacher का initiative है, it's a follow up on that blog, because अपने blog पे भी मैं सिर्फ कहानियां ही लिखती थी. I used to write stories about what's happening in my classrooms. और मुझे कभी भी audience, I had an audience in my mind, like I said, every story has an audience. मगर मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं इसको भेजती हूँ, ये पढ़ेगा मेरी कहानी, या आई वांट पीपल टू रीड माय ब्लॉग. इट वाजंट दैट. इट वाज जस्ट दैट आई वांटेड टू शेयर व्हाट्स हैपनिंग, and I wanted to inspire and motivate teachers, because I feel it's such a difficult profession, and only a teacher can understand another. जब आप उस पूरी सिचुएशन में होते हैं जहाँ expectations are pulling you from all sides, then to be fair, चाइल्ड, आपका फोकस बच्चे से जहां हटता है वहां पे आपसे गलती हो जाती है. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द चाइल्ड एट ऑल टाइम्स. एडमिनिस्ट्रेशन कई दफा आपसे बहुत गलत उम्मीदें रखती है. पेरेंट्स कभी कभी आपसे बहुत अनरीजनेबल किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. आपने एंड में ये देखना होता है कि इसके बच्चे के फायदे की कौन सी चीज है, मुझे तो वही करनी है. तो फिर मुझे किस तरह से लोगों को पैसिफाई करना है. इट्स सच अ प्रेशरिंग जॉब. सो ब्लॉग का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मे बी अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड सक्सेस इज गोइंग टू इंस्पायर अनदर टीचर टू कीप गोइंग, बिकॉज हर टीचर कोशिश कर रही होती है. ऐसा नहीं है कि मैं या कोई और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है. there's nothing extraordinary about a teacher. It's actually very ordinary. This is our ordinary job, that we are supposed to raise children in a positive manner and give hope to the parents who are somewhat lost with the children. तो वाई टीचर को मैंने लेके इस तरह से आई रियलाइज कि लोग अब टेक्स्ट नहीं पढ़ते इतना. पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू थिंग्स. सो वो मैंने अपने आप को अडेप्ट किया कि जो कहानियां मेरे ब्लॉग में हैं उनको अगर मैं मेथडोलॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करना चाहूँ, तो आई शुड स्टार्ट ऑफ विद समथिंग लाइक दैट. तो वाई टीचर का इनिशिएटिव जो है, इट्स अगेन शेयरिंग क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, बट एट द सेम टाइम लाइक मुझे ये भी रियलाइजेशन आई कि लोगों के पास तो अब 10 मिनट की भी अटेंशन स्पैन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. लाइक दैट्स सो सैड एक्चुअली. हम यहाँ पे इतना लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. नहीं, this is actually the point. No. किसी चीज को सुने. Exactly. तो उस 1 मिनट स्टोरीज निकली, क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है उसको जब कोविड when COVID hit and we were all locked down in homes, तो मेरे बच्चे भी तीनों लड़के घर पे थे. तीनों बेटों में मेरे 5 साल का डिफरेंस है, तो देर अपार्ट. सबसे बड़े और सबसे छोटे में 10 साल का डिफरेंस है. मगर मैंने अपने बच्चों के साथ जब भी एक्टिविटीज की है ना, तो एक ही लेवल पे की है. मैंने कभी ये नहीं कहा ये छोटे तुम्हारे साथ मैं ये कर रही हूँ, बड़े मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ. यहाँ तक कि मैं आई वॉज सो फिनकी कि मैंने अपने बच्चों के राइटिंग जर्नल्स रखे हुए थे. तो एवरी सैटरडे आई वुड put all 3 of them at the table and give them the same topic. और टॉपिक हमेशा फिलोसॉफिकली होता था कि यानी कि how do you view women in the society. या मैं क्योंकि लड़के हैं तो मेरे जहन में वो कीड़ा भी था कि मुझे अपने बच्चों को जरा थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना है. मेरे घर में कोई बेटी तो है नहीं कि ये बहन को समझें या कुछ. तो वो मैं इनको टॉपिक्स ऐसी देती थी कि कि स्कूल इंटरेस्टिंग कैसे बन सकता है. इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी कि तीनों एक ही टॉपिक को कैसे एड्रेस करते थे एट डिफरेंट एज ग्रुप. बच्चे कैसे सोचते हैं, मेरे लिए वो भी एक एजुकेशन थी. आई वाज लर्निंग फ्रॉम माय चिल्ड्रन कि 16 साल का लड़का जो है वो इस चीज को ऐसे देखता है, 11 का ऐसे देखता है, 5 का ऐसे देख रहा है. तो इट्स लर्निंग फॉर यू. सो वो अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते. बच्चे तो सीख ही रहे हैं, क्योंकि फिर मेरा ये होता था, फिर मैं तीनों को बिठा के डायलॉग भी करवाती थी कि चलो बताओ तुमने ऐसे क्यों कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है. तो वो एक डिस्कशन हमारी होती थी बच्चों के साथ. तो ये जो 1 मिनट स्टोरीज हैं ये भी it was the same thing. The idea was कि छोटे ने मुझसे कहा कि मामा कोई इतना लंबा नहीं सुनता, आप ऐसा करेंगे बस 1 मिनट की हम कहानी बनाते हैं. So I'm just going to say one word and you're going to say one word and everybody will say one word and in a minute we have to finish the story. So something has to come out of the story. तो वो एक बहुत ही हमने खैर it was a beautiful time we spent together. क्योंकि हम वो at the same time we would create a story. उससे हमारी understanding of each other also developed. So this is another aspect of storytelling, कि कौन शख्स किस लेवल पे है. कहानी जब बनती है तो कौन सा बच्चा जो है हमेशा ही कुछ नेगेटिव डालता है,
या हमेशा इसको ट्विस्ट कर देता है किसी और चीज की तरफ। तो मतलब मैं अपने बच्चों को कई दफा मुड़ के भी देखती थी कि भाई तू कहाँ है भाई, कौन सी प्लॉट में घुसा हुआ है तू कि बिल्कुल ही नहीं मुझे समझ में आ रहा कि ये कहानी कहाँ जा रही है। तो it's just there are many interesting things for people to do with their children. और it tells you about your children, you know, कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, and then you have to adapt. I'm all for children, you know, I feel कि हमने बहुत सारे फिक्स्ड किस्म के आइडियाज अपने जहन में रखे हुए हैं जो हम सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, बच्चे उससे बहुत मुख्तलिफ सोचते हैं। Unless and until you have something to share with them or they have something to share with you, you can become very distant with your children. अगर आपके पास कॉमनैलिटीज नहीं है ना, अगर आप कुछ भी बात नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, तो फिर यू विल बिकम वेरी डिस्टेंट विद योर चिल्ड्रन। आई थिंक वो चीज तोड़ी जा सकती है। कहानियां इज द बेस्ट वे टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ आइस विद एनीवन। सच्ची होनी चाहिए बस कहानी। मुझे ये है कि आपकी इमोशन सच्चा होना चाहिए, आपका नैरेटिव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट में है बच्चों से, it should be honest to yourself. You're not just doing it because आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, तो आप उसको खामोश कराना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। You should be very honest about your narrative. फिर बच्चा भी ऑनेस्टी से आपसे डील करता है और बात करता है। तो ये इनिशिएटिव्स है। बाकी मुझे वैसे शौक है बहुत ज्यादा बोलने का, जैसे कि आपको अंदाजा हो गया होगा। नहीं, it's good. So basically वही जो आपने बात की ना कि I think हमारा yes respect is very important. Not just not just an important part of our culture, but respect in general होनी चाहिए. But I think ये जो idea ना कि authoritative respect is the only form of respect जो हमें समझ आती है, जिसको हम nurture करें. I think and we're fooling ourselves. Yeah, we're yes, fooling because ourselves. मतलब चलें घर में पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ वो रिस्पेक्ट में आई थिंक देन देयर थोड़ा सा लाइन का भी कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है, बिकॉज बच्चों ने या जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसको उस पर चल रहा है वो उसने वो करना ही करना है। यू कांट अब कितना कुछ अब कर लेंगे, फिर उसमें कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। एंड देन इफ यू टेक इट आउट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इट डजंट नेसेसरी मीन कि कोई बंदा आपको सामने आके सर्जी कर रहा है तो वो आपको एक्चुअली रिस्पेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। देयर आर एंड एवरीबॉडी नोज दिस, मुंह टर्न होता है तो पीछे वो जिनको उनके सामने सर्जी कर रहे होते हैं, stabbers behind you. ठीक है, एग्जैक्टली। एंड एट टाइम्स जो हमारे वो सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो स्ट्रेटेजिक, नॉट स्ट्रेटेजिक बट ट्रेडिशनल, या जो बड़ा एक बॉक्स हमने आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट रखा हुआ है, एंड यू सी समबडी इंटरैक्टिंग विद देयर सीनियर कॉलीग्स इन अ डिफरेंट टर्म, उन्हें होता है कि होगी तो रिस्पेक्ट नहीं करते, बट यू डोंट रियली नो in that comfortable environment how much respect the one person has for another, and likewise. So yeah, and then talking about long format conversations, I made it a sort of to end it. I sort of made it a point of doing these as a long format thing, and not really having anything against the short format content. Obviously it is there, वो एक हमारा social media के उसके में हमें actually whenever we are talking about it we use this term के studies are showing that human attention span is sort of becoming shorter than that of a goldfish. Yeah, which is not a good thing actually. Exactly, it's not a good thing, but and people always just blame because it's because of social media and XYZ, and I was like, this is a tool, this is a technology, it's not going to reverse itself. But लोगों ने ना एक्चुअली टेक्नोलॉजी को लेके एक टर्म बना ली है, स्मार्ट। सो वर्क स्मार्ट। तो वर्क स्मार्ट में ये होता था कि जब तक आप किसी प्रोसेस से निकल के आपने वो चीज नहीं की तो आपको उसकी छोटी छोटी डिटेल्स नहीं पता है। Exactly. ठीक है, आप स्मार्ट तो हो सकते हैं कि आपने यहाँ से लेके उसको काट के वहां से वहां जोड़ दिया, तो वो आपने कर लिया, लेकिन जब मसला पड़ता है तो फिर सॉल्व करने वाला वही शख्स होता है जिसको सारी डिटेल्स उसकी मालूम होती है। सो आई थिंक in a lot of ways the word smart has really affected people in a way where they are always looking for something short or something quick or something like just get over the whole situation, get to the point kind of a thing. तो वो जब हम टॉलरेंस चाह रहे हैं, हम पेशेंस चाह रहे हैं, लेकिन हम वो टूल्स तो यूज कर ही नहीं रहे हैं बिल्ड करने के। so well कुछ चीजों पे शॉर्ट आपको जरूर, but again वही वाला जो जिस तरह just to add to what you are saying, the idea of keeping these conversations, this podcast on a long format point is
storytelling is a generic theme that I have kept for this podcast, but every podcast has a very specific theme. आपके साथ एजुकेशन पे बात हुई, किसी और के साथ उर्दू लिटरेचर पे बात हुई, हाँ, आप वो तो उनकी स्टोरी तो है, it's sharing 12 their story. सेकेंड या 5 मिनट के अंदर आप सारे एस्पेक्ट्स नहीं कवर कर सकते. So this is sort of a library of conversations where and I don't expect somebody to just listen until unless you're going on walks, so please do listen to them. But like even अगर आप patches में भी सुने, you get to understand these different segments के जी एक चीज के इतने different aspects हैं, उनके क्या pointers हैं, connect to them and then sort of, and that can't be done instantly. And instantly, the thing is, like, every storyteller will find a listener. That's the truth of it. Okay, so it doesn't mean that आप कहानी सुना रहे हैं तो आपके, it's the same thing as saying कि आपके कितने follower हैं जी. तो भाई अगर लोग आपके उसमें फील्ड में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपको नहीं फॉलो करेंगे, वो नहीं सुनेंगे उसको. आपको भी वो लोग नहीं चाहिए कि वो फजूल में आपको फॉलो करें, वो सुनना है वैसे. मेरे पास फॉलोअर्स होते हैं लेकिन सुनने वाले बहुत सीधा कम लोग होते हैं. आई वैल्यू दोज लिसनर्स, और मैं बनाती भी कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए हूँ ना जिन्होंने सुनना है. जिन्होंने नहीं सुनना वो थोड़ा सा सुनेंगे, उसमें भी होप रखनी चाहिए इंसान को कि आई होप दैट somebody picks up something from there. So you're not making it with the wrong intentions, you're making it with the right intentions, that you're sharing something. Sharing knowledge is an important thing. You share it. Not everybody will agree with it, but whoever can benefit from it will do so, which is the positive aspect of it. So moving on and sort of wrapping up a conversation, एक last segment of your work you do, जो आप थोड़ा सा बताओ, and obviously introduction में भी थोड़ा सा touch upon किया था, and it is sort of connected with what you mentioned about having an interest in writing. कि आपने teaching छोड़ी, but I don't think आपने teaching as such छोड़ दी है with the other stuff you do, but जो आपका current evolution of your current job is not going into deep with the nitty-gritties of your job or everything, but जो transition आपकी हुई, जो आप writing कर रहे हो, how has that sort of evolved for you personally, be it the storytelling या आपका अपना professionally जो growth है उसका, वो how do you see it? So again, I would say that I'm not going in a classroom anymore, but kyunki I'm working with the foundation and I'm managing a writing competition with them, I'm still pretty much delivering webinars for children on creative writing. So I consider this as part of my experience. I'm still a teacher, और मेरे लिए identity of being a teacher is the strongest. मेरी कोई भी job description हो जाए, I always identify with myself as a teacher because I feel that has given me a lot of meaning in life. मैं एक बहुत ही non-serious, very easy-going, very, you could say, frivolous kind of a person. जिंदगी में हंस गा लिया, बस कुछ भी नहीं, पढ़ाई भी ऐसे ही की, like I was that kind of a child. तो टीचिंग ने मुझे इतना पर्सपेक्टिव दिया अपनी लाइफ में. मेरी लर्निंग जितनी भी हुई है वो क्लासरूम्स में हुई है, दूसरे टीचर्स को देख के हुई है, अपने इंस्पायरिंग लीडर्स को देख के हुई है. I've been very lucky to have worked with women, and I would specifically mention these, like women who have groomed me as a human being, as a teacher, as an educator. I've always been very lucky to work with people जिन्होंने मुझे ऐसे ट्रस्ट करके ऐसे छोड़ दिया कि जाओ कर लो, जो तुम करना चाहती हो वो कर लो क्लासरूम के अंदर. मैं बहुत आइडियाज लेके जाती थी शुरू से. मेरे लिए लोग तो कहते हैं ना कि टीचिंग में इतने काम होते हैं कि कि अब छोड़ दो टीचिंग. मुझे होता था वो मैं काम सारे कर लूंगी, लेकिन मुझे ना ये 3 काम और करने हैं, तो मुझे ये करने दें. तो उनके लिए तो जाहिर है, they used to be very happy कि चलो एक तजर्बा ये भी हो जाएगा, let her do it in her classroom and we can see. So I was that motivated with teaching. Then secondly, it was a little on a personal level as well. So, like I'd lost my mother when she was very young, like 55, 56. That's a very young age for a mother to leave. So I was very close to my mother. And मैंने कभी जिंदगी में कोई फैसले खुद नहीं किए थे. I used to call my mother. I was the kind of daughter कि अच्छा अम्मा ये बताएं ये कैसे करना है, इसको ऐसे कर लूं. तो मुझे ऐसे लगा कि suddenly there was a huge void and I needed to fill that void. So I feel education and teaching in a lot of ways became my comfort.
मुझे वहां अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आती थी, अपने लाइफ का पर्पस समझ में आता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू फॉल इन टू डिप्रेशन और फॉल इन टू अ स्पेस जहाँ पे मैं एक पॉजिटिव इंडिविजुअल टोटली नेगेटिव हो जाऊं. Life can do that to you if you don't take care, if you don't realistically think about who you want to be, which direction do you want to take, and then you engage yourself with that. So मैंने अपने आप को बहुत deeply immerse किया था into teaching, and I think that's given me an identity. क्योंकि identity के साथ आप थोड़ा सा you do tend to go आप अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं जब आप पेरेंट लूज करते हैं, बिकॉज आपको उतना अच्छा कोई जानता ही नहीं है जितना आपका पेरेंट जानते हैं. सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी माँ मुझे ये कहती है, बाप ये कहता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती किसी चीज के बारे में. बट वेन यू लूज अ पेरेंट यू सडनली फील कि अच्छा अब ये आंटी क्या सोचती होगी मेरे बारे में, शी डजंट रियली नो मी, शी नोज मी एज दिस पर्सन्स डॉटर, लेकिन they don't really know me. So I'm anonymous to quite an extent. I haven't created an identity for myself. ये आपकी सोच होती है. It's not reality, but that's how you lost your identity. So वो जो built up करना होता है ना अपनी identity की, ये मेरी achievements हैं, ये मेरे काम हैं, ये मैंने किया है, वो मैंने बहुत मेहनत फिर की अपनी टीचिंग को फोकस करके. So मुझसे कभी भी कोई पूछता ना कि आप क्या काम करती है, तो मैं कहती हूँ मैं टीचर हूँ. Because that's what I identify with. That's what's given me everything in my life, all the perspective about things, how to, मुझे कभी ऐसा feeling नहीं हुई कि, I am scared what's going to happen next. Because मुझे ये clarity है बिल्कुल अपने जहन में कि I am doing exactly what I'm supposed to be doing. And when the time will be over, the time will be over. So मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ना अभी वो करना था तो अभी तक मैंने वो किया नहीं है बिल्कुल भी. I got into what I needed to do at a very young age, and then I continued with it. So अब मुझे ऐसे लगता है कि किसी को इसका फायदा होता है या नहीं होता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे कोई फॉलो करता है नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क पड़ेगा उस वक्त जिस वक्त मैं ये नहीं कर पाऊंगी. So these are my fears as well. I sometimes feel that there are a lot of talented teachers out there, but opportunities come to a few. So definitely वहां कहीं ना कहीं you have to be blessed. You can't just say कि बस मैं बहुत ही skilled हूँ इसकी वजह से मुझे ये opportunities life में मिली हैं. I mean, I am a teacher who just walked into a school and started teaching. मेरे से बहुत अच्छी knowledgeable professional teachers हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा educated teachers हैं, मगर जो opportunities मेरे हाथ में आई वो मेरे लिए ही थी. They were only meant for me. And so I try to do as much justice as I can to them, and then leave it on God कि ये इसकी जितनी भी इसका जो भी सवाब है, मैं तो आज भी दुआ करती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि भाई इसका अगर कोई भी सवाब है तो वो मेरे माँ बाप को जाए. क्योंकि आप आई थिंक आप दुनिया में इतना ही कर लें बहुत है. लोग पता नहीं क्या क्या प्लान करते हैं. मैं तो क्लासरूम में पढ़ाई ले तो बहुत बड़ी बात है कि आप क्लासरूम में 30 बच्चों को कुछ दे के आ जाएं, यही काफी है आपके लिए. I agree. I think because वो जो एक notion है ना कि I think ये हमारे हर aspect of life पे, even on a bigger political landscape का भी I think एक key flaw है कि एक बंदा आए वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन instead of that grassroots change, वो एक I think I don't know, there's a meme where वो 3 कार्टून है, बेसिकली 3 सेगमेंट है जहाँ पे एक बंदा पोडियम पे खड़ा होकर कहता है who wants change, तो जो क्राउड दिखाया है वो सबने हाथ खड़ा किया हुआ. फिर सेकंड उस पे होता है who wants to change, तो उस पे सिर्फ थोड़े से हाथ खड़े रह जाते हैं. फिर वो उसका तीसरा क्वेश्चन होता है who wants to lead the change, और जो उसका ऑडियंस है ना वो सारे आउट हो जाते हैं. So yeah, I think that's a very true thing. So wrapping up, do you want to like talk about anything about your writing and how you're using it at the current phase, जिस तरह आप जो भी आप अपना professionally कर रहे हो, how that is impacting and how you connect it with any. Yeah, writing is just a dream, Fatima. Like to think that I would write something. I mean, I write some short stories. I post them on my blog. उसके अलावा जो है एक मेरे जहन में है कि मुझे कहानी लिखनी है, मगर at the same time I'm such a bad fictional writer. मैं बहुत बुरा लिखती हूँ fictional. मैं create कुछ कर लूँ, मुझसे creation नहीं होती इस तरह से. I mostly write, memoirs, or I would write reflective essays, anything that has to do with
real life. I know that it's a skill to put real life into fiction. You know, आप वही events लेके fiction में भी डाल सकते हैं. And I've tried my hand at it. Like there is something on a side which I keep writing. लेकिन I'm never happy with it because मुझे ऐसे लगता है जैसे I'm not that person. I will never be able to create a character और उसको पूरी justice के साथ मैं उसको बना दूं. You know, I feel like मेरी जिंदगी के जितने भी experiences हैं, they are all very real. You know, और मैंने रियल लोगों को देखा है, रियल लोगों से बात की है, मैं उनको कैरेक्टर्स में नहीं बदल सकती बिल्कुल भी. दे आर टू रियल फॉर मी. सो आई डोंट नो इफ दैट्स अ इशू विद सम पीपल और नॉट, और writers struggle with something like that. I totally can relate to that because एक दो और I also मतलब whatever my writing is, I think at one the only I think fiction writing that I can remember as a grown up is which I did at one of my previous jobs. यहाँ पे बच्चों के लिए स्टोरीज लिखी थी, बट वो I think I was able to pull it off because वो स्टोरी की थीम पता थी कि क्या करना है, उसके ना पॉइंटर्स थे कि ये स्टोरी बना, मतलब दिस इज द वही वाली बात है, डायरेक्शन वाज देयर, डायरेक्शन है, ये पर्पस है, इसके बीच में बस कुछ स्टोरी बना लो. So I think I was able to do that. But अभी recently somebody also asked me during COVID भी ना कि they know that I read a lot and कि I do writing as well, and then I had to tell that person, I was like, मेरे से नॉन फिक्शन जितना मर्जी लिखवा लें, आई एम मोर देन हैप्पी इनटू इट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट. ट्रैवल लॉग हो गया, ऑब्जर्वेटरी हो गया, सारा कुछ. I was like, but using that, and then I read a lot of fiction, but I don't see myself being able to write, and I really have huge respect for authors who can do both non-fiction and fiction. It's not an easy task. और दूसरी बात ये है कि if you're a random writer, you know, I am a random writer. मुझे जब तक कोई चीज बहुत ज्यादा हिट नहीं करती, मैं लिखती नहीं हूँ उसके बारे में बिल्कुल भी. So I know कि it's a skill. अगर आप सीख लें तो आप कर भी सकते हैं. I mean, recently I did attend a workshop with Robert McKee, and वो बहुत intensive workshop थी on, you know, how to create characters and how to run a plot और intrigue कैसे create करना है. It was very interesting. मगर at the same, and he said I don't believe in all of this that people say that I only write when I feel, you know. It's a skill. If you learn it, then you're able to do it, which must be true with his experience and with his, you know, the kind of workshops he does and his all that he talks about related to creative writing. But the reality remains that I do feel I write my best when I'm most touched or when I'm at that level of expression, you know, जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है मुझे effort ही नहीं करनी पड़ी, जो मैं feel करी थी वो मैंने लिख दिया सारा. And normally it's very personal. Like what I write, it's really strange. I put it out to the public. Sometimes my sister says, "What's wrong with you? इतनी personal अपनी feelings भी तुम बाहर डाल देती हो." तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे अपने पास रखने के लिए तो फिर मैं लिख क्यों रही हूँ? You know, why am I writing if I'm going to save it somewhere with me? वो तो मेरे अंदर है, तो फिर I might as well not express it. So expression is really important for your well-being. You know, you have to express yourself. और मैं हमेशा क्लासरूम में होते थे तो उस पर यही फोकस होता था कि जो भी मीडियम बच्चे का है ना उसको आइडेंटिफाई कर दें हम बच्चे के लिए. दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अ चाइल्ड, इज टू हेल्प देम आइडेंटिफाई कि वो कहाँ किस मीडियम से बेस्ट एक्सप्रेस करता है. राइटिंग से करता है, आर्ट से करता है, स्कल्पचर से करेगा, गाने से करेगा, कॉम्पोजिशन बना के करेगा. यू नो व्हाट इज हिज मीडियम, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम जब आएगा और उसके पास एक्सप्रेशन का मीडियम होगा ना तो वो उसमें से गुजर जाएगा. ही विल बी एबल टू express himself, he'll be able to get through the challenging situation. अब बहुत सारे लोग हैं, they took COVID really harshly. It was difficult for them. और it was difficult because express करने का कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था. तो जो लोग ट्विटर पे गए, जिन्होंने सोशल मीडिया की वीडियोस बनाए, जो टिकटॉक में लगे, they were happy. You know, they just got it out. चाहे वो sad भी हैं, you know, but they got it out. So the emotional out जो है ना वो आपको एक स्पेस चाहिए टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो मुझे ये लगता है कि मैं एक्सप्रेस करती हूँ, लिखती हूँ तो मैं शेयर कर लेती हूँ, मुझे उससे कोई मसला नहीं है. मुझे कहते हैं बहुत सारे लोग दैट यू आर टू ओपन विद योर लाइफ टू द पब्लिक. मैंने कहा मेरी ऐसी कौन सी लाइफ है जिसके अंदर पब्लिक इतना इंटरेस्ट लेगी. तो मैंने कहा मैं छोटी छोटी चीजें तो कर रही हूँ यार लाइफ में, तो अगर मैं वो शेयर कर लेती तो क्या प्रॉब्लम है. तो एनीवेज नोबडी ऑब्जेक्ट्स टू इट, बट दे फाइंड इट स्ट्रेंज दैट यू नो आई वुड एक्सप्रेस सो मच. मेरा ये है कि मैं
Instagram पे differently expression आता है, Twitter पे different आता है, Facebook is used differently, YouTube पे different है. So I think I like being diverse in expression. हर वक्त एक मूड में नहीं होते आप डिफरेंट तरह के मूड्स को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करें. So I think it's a healthy thing and we should develop that in our children. Yeah, and through expression, I think जो आपने बात की है, there are people who have some sort of a shock sort of reaction associated to it. I think थोड़ा सा it comes also from the fact कि एक वो judgment का एक है ना, because we know कि कुछ if we are vulnerable or we show that side to comments आएंगे आपको, and not just comments in on social media as well, in real life as well. एक वो stigma is true, despite the fact कि mental health पे अब थोड़ी सी बात होनी शुरू हो गई है, people talk about trauma, everybody on that front as well, but still there is stigma. It's going to take a lot of time before people are comfortable in showing that everybody has this आपने एक वो image बनाया when you're like that's proper and अंदर रखना है सारा कुछ, problems नहीं show करनी. So I think that comes from that, and as you said here, that also has a toll on mental health. So yeah, and let's wrap it up here. Okay. This was a very interesting conversation. Very. Thank you. I really enjoyed sharing with you, Fatma. It's not always easy to open up everything of your life, everything related to your life with someone. It's a pleasure. But at some levels, I feel like we kind of have experienced life quite similar, maybe. Yeah. Yes. In a lot of ways. In a lot of ways. So yeah, and it was very insightful. It was very interesting, and you are like, I'm just giving you this information. I'm not like asking you yet. You are going to be a regular feature on Mixtape, and we will talk about various things. And those episodes are not going to go very well, I'll tell you. That's okay. You'll have 2 minutes of listening, and then people will disappear. That's okay. Like this is not a platform that's like looking for monetization, so that's okay. It's an yeah. कोई आएगा आगे जाके किसी को समझ आ जाएगी. But yeah, this was very interesting, insightful, and we'll have you back for another session. And we might definitely take up some other aspect of communication and storytelling, and maybe mental health as well. So thank you for your time, and thank you so much for having me. I had a wonderful time. Thank you, yeah. Okay, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.